है इसमें दम, बहुत दम। पहले दिन से ही इनका शेड्यूल तो बहुत रहता है। यहाँ पे 80-85 साल के लोगों को ये देखना कि वो बिलीव कर रहे हैं कि मेडिसिन छोड़ सकते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। मेरा शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो गया, दवाई सब बंद हो गई। जब मैं आया था तो यहाँ 142 के अराउंड था। लीवर सिरोसिस है, डायबिटीज है और बीपी है, कैरेस्ट्रॉल है, हार्निया है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम थी, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेरी 66 ईयर्स की एज है, बट आई थिंकिंग आई केम वेरी लेट। बहुत पहले आना चाहिए था। बीपी करीब 25 साल से है और डायबिटीज करीब 18 साल से है। तो अगर हमको पता होता तो यहाँ बहुत पहले आगे होते, बहुत पहले कर लिया होता। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी में कोई इलाज नहीं है। एनएलएस कैंप में हम अभी तक में कई पेशेंट से मिल चुके हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ रितु जी यहाँ पर हैं। आप मुझे अपने बारे में सबसे पहले बताइए प्लीज़। Hi, I'm Ritu. I work as a head legal for OLX India Group. And I'm also a yoga and meditation teacher with Art of Living Foundation. We teach happiness programs there. तो आपका क्या इशू था जो आप यहाँ पर आए हैं? As such, मेरा कोई इशू नहीं था, but I'm expecting and I am in the second month of my pregnancy. So just to have better lifestyle, better eating habits, to avoid certain things, I joined the camp. Yeah. कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर 4 दिन के लिए? Yes, the camp was very beautiful, very good experience, and the most important thing that I want to share with you is that during this 4-day camp, I've had zero nausea, zero vomiting, zero stomach upset and everything, and I was able to feel a lot of connection with my baby. The baby was also able to feel the connection, and we were writing letters to each other, and we were enjoying this. And apart from this, a lot of things, like I felt so happy to see people curing from their things. It was so good exposure to be with such people. They are dropping their medicines. और बहुत अच्छा लगा. My roommate was somebody who was 70-75 years old, and she had some restlessness at night. The doctors came. The doctors suggested that you take half medicines, but I was so amazed to see the willpower of Auntie Ji that despite the doctor saying to her take the medicine, she refused to take the tablet, and she healed within 30 to 40 minutes in the room itself, and with the help of the solutions that Acharya Ji and Pooja Ji mentions. रितु जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद मेडिसिन से ही पीछा छूटता है या आपकी जो प्रॉब्लम है उससे भी पीछा छूट जाता है? मेडिसिन इज़ वन थिंग, उससे तो डेफिनेटली लोग छोड़ ही देते हैं, क्योर होता ही है. बट इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं. लोग अपना मेंटल डिस्ट्रेस होते हैं, लोगों को फिज़िकल डिस्कम्फर्ट कितना होता है, और एक विल पावर बहुत लोगों के अंदर, ये कॉन्फिडेंस आना इन द एज ऑफ 70-80, इट्स अ बिग थिंग दैट दे कैन लिव विदाउट मेडिसिन. बिकॉज जड़ें जितनी मजबूत हो जाती हैं उनको बदलना मुश्किल हो जाता है. लेकिन यहाँ पे 80-85 साल के लोगों को ये देखना कि वो बिलीव कर रहे हैं कि मेडिसिन छोड़ सकते हैं, दैट्स अ बिग थिंग. क्या सजेशन आप बाकी के ऐसे एक्सपेक्टिंग मदर्स को देना चाहेंगे, बाकी के और पेरेंट्स को देना चाहेंगे? Yeah, so my foremost suggestion to the expecting mothers would be take NLS diet. Because we know that we should eat less. Even if you are eating less, what you are eating, that does matter, because we are carrying a life inside, and that forms the baby inside. So one is that, the diet thing. Secondly, if we change our lifestyle, so definitely it's going to cure a lot of things. During my first pregnancy, I had vomiting until 9th month, and that was like it was getting started from the womb. Used to feel the pressure there, but by God grace, luckily this time zero vomiting I am experiencing in these 4 days camp, and it's a very blissful feeling for me. तो हमारे साथ जो हैं एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है. सर, आपका शुभ नाम मैं जान सकती हूँ? नरेश कुमार सिन्हा, मैं बॉम्बे से आया हूँ. बॉम्बे से यहाँ पर आप ट्रैवल किए हैं, क्या वजह रही है? ये हमारे भतीजे हैं यहाँ पे, निखिल सिन्हा, यहाँ पे वॉलंटियर भी हैं. तो वो आए थे अभी बॉम्बे, तो उन्होंने वाइफ को somehow he is convinced, so wife wanted to come over here, तो I just came here कि उनको साथ जाऊँगा. और मैंने इनको ये भी बोल दिया था कि मेरे को आने के बाद ये मत बोलना ये करना है वो करना है. मैं कुछ फॉलो नहीं कर रहा? कुछ फॉलो नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ जस्ट. बट यहाँ आके जो मैंने देखा, जो मैंने करा, मेरी एक आदत है, जो मैं पकड़ता हूँ तो ढंग से पकड़ता हूँ, छोड़ता हूँ तो ढंग से छोड़ देता.
तो मेरे को लगा कि ये है, इसमें दम, बहुत दम है। और पहले दिन से ही इनका शेड्यूल तो बहुत रहता है, और मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पे जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं ना, जिस तरह से वो हर चीज़ की वजह से साइंस बताते हैं, तो उसमें लगता है कि यस, इसमें कुछ वैल्यू है। एंड डे बाय डे वही चीज़ हर चीज़ की वजह से साइंस सुनते सुनते ऐसा लगने लगा है आज कि यस, वी विल एबल टू अचीव। मेरा शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो गया, दवाई सब बंद हो गई। जब मैं आया था तो यहाँ 142 के अराउंड था विदाउट मेडिसिन, और शाम को कम हो जाता था। अभी मेरे को क्या हुआ, इन्होंने बताया था कि लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसका मतलब ये है कि बिना एनिमा, बिना कुछ सिगरेट, बिना पानी पिए अगर उसको मोशन क्लियर हो रहे हैं तभी कॉन्स्टिपेशन नहीं। मैं यहाँ पे मेरी आदत है पिछले 10-12 साल से, मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीता था, तो उसी की आदत पड़ी हुई थी। तो मेरे को यहाँ पे आके एक पहले दिन तो उन्होंने ये बताया, दूसरे तीसरे दिन जो मैंने यहाँ की सब चीज़ चालू फॉलो कर दिया तो कॉन्स्टिपेशन मेरा नहीं हो रहा। तो लेकिन उन्होंने हर चीज़ में मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हर जब भी मैं पूछने गया उन्होंने कहा ये कर लो, ये कर लो, एंड आई एम वेरी मच श्योर। उन्होंने बताया बीपी अभी जो पहले से तो कम हुआ है, लेकिन अभी जो है दैट इज़ ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, बीपी आपका ख़त्म, नहीं आप सब ठीक हो जाएगा। क्या सजेशन आप देना चाहेंगे बाकी? मैं तो यही कहूँगा कि नोबडी शुड यू नो डाउट इन दिस सिस्टम, और हर आदमी को अपनी हेल्थ का केयर करना चाहिए। अगर वो हेल्थ इज़ वेल्थ, एवरीबडी नोज बट नोबडी फॉलोज। तो अगर वो फॉलो करेंगे, हमें तो इस समय आज मेरी 66 ईयर्स की एज है, बट आई एम थिंकिंग आई केम वेरी लेट। बहुत पहले आना चाहिए था। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम शुगर लॉन्ग बैक, तो अगर हमको पता होता तो यहाँ बहुत पहले आगे होते, बहुत पहले कर लिया होता। तो हमारे साथ अतुल गोयल जी हैं जो यहाँ दिल्ली से मौजूद हैं। सर, क्या समस्या रही है आप? मेरे को समस्या बहुत सारी हैं। मेरे को लीवर सिरोसिस है, डायबिटीज़ है, और बीपी है, कैरेस्ट्रॉल है, हार्निया है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम थी, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये कब से हुई हैं सारी प्रॉब्लम? मेरे को बीपी करीब 25 साल से है, और डायबिटीज़ करीब 18 साल से है। 18 साल से उसके सिरोसिस अभी 2 साल 2.5 साल पहले डायग्नोस हुआ था मेरे को। जब मैं आज से 4 महीने पहले मैं एनएलएस के कैंप इंदौर में आया था, मुझे जानकारी लगी थी तो मैं इंदौर में आया था। उस समय मैं 40 यूनिट इंसुलिन और 38 टैबलेट्स मैं खाता था पर डे। 38 टैबलेट्स आप लेते थे? हाँ, 38 टैबलेट मैं डेली लेता था, 38 टैबलेट्स। उसके बाद जब मैं एक बार इंदौर में फर्स्ट टाइम इंदौर में आया तो 40 यूनिट से मेरी इंसुलिन रह गई 12 यूनिट। 20 दोनों टाइम लेता था, 6 रह गई मेरी, और मेरी गोलियां 38 में से 8 बंद हुई थी। 30 रह गई। फिर मैंने 3 बार इंदौर में करा है, आज मैंने जी कम पहली बार करा है। इसके बाद मैंने सेकंड टाइम जब मैं इंदौर में गया तो मेरी इंसुलिन 0 हो गई, और मेरी 10 गोली और बंद हो गई। अब मेरी कुल मिला के 18 से 20 गोली चलती हैं, लेकिन अभी अगर मैं ढंग से फॉलो करूँगा तो वो भी शायद कम तो हो जाएंगी, बंद नहीं होंगी तो क्या है, बिल्कुल हो सकता है कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पे 10 तक आ जाए। अच्छा, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप इससे पहले भी जा चुके हैं, बाकी और भी कई हमारे व्यूअर्स होंगे जो आना चाहेंगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब आए ना आए? मैंने तो बहुत लोगों को प्रपोज करा है, और मैं तो एक तरह से आप समझें कि एनएलएस का मैसेंजर या वॉलंटियर बन गया हूँ। मैं हर जगह हर आदमी से कहता हूँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी में कोई इलाज नहीं है। एनएलएस में नेचुरल लाइफ स्टाइल में सिर्फ लाइफ स्टाइल जीना है। इनको कोई पुड़िया, कोई दवा, कोई टॉनिक नहीं देना है। सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने से, खाना पीना चेंज करने से आपकी सब बीमारियां अपने आप सही हो जाएंगी। इनके सर्विस कैसी है? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात ये है मैम, इनकी सर्विस तो क्या, इनके चार्जेज ही बिल्कुल ना के बराबर हैं, 0 चार्जेज। चैरिटेबल ही है ये एक तरह से। उसमें एसी कमरा ये प्रोवाइड कराते हैं, दिन भर थेरेपी कराते हैं, 2 टाइम 3 टाइम का खाना, लंच, डिनर सब
नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जूस वगैरह ये थे, सब चीज़ देते हैं। अगर आपको फ्रूट बोला है फ्रूट खाने के लिए तो महंगे से महंगा फ्रूट, अगर 200 रुपये किलो की लीची है, 200 रुपये किलो का जामुन है, आप पेट भर के खाओ, 1 किलो खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू।